پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان واپس کر دیا۔ انٹرا پارٹی الیکشن اور انتخابی نشان سے متعلق کیس کا محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ بحال کر دیا گیا۔ عدالت عالیہ کے جج جسٹس اعجاز انور اور جسٹس سعید ارشد علی نے پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کی۔ سپریم کورٹ کے جسٹس مظاہر نقوی عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے اپنا استعفیٰ صدر مملکت کو بھجوا دیا۔ استعفے میں جسٹس مظاہر نے موقف اختیار کیا کہ میرے لیے پہلے لاہور ہائی کورٹ اور پھر سپریم کورٹ کے جج کے فرائض انجام دینا قابل فخر ہے۔ ایسے حالات جن کا عوام کو علم ہے اور کچھ حد تک ریکارڈ پر موجود ہیں، میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں سپریم کورٹ کے جج کے طور پر فرائض نبھاتا رہوں۔ اسرائیلی فوج کی غزہ کے رہائشی علاقوں پر بمباری سے مزید 126 فلسطینی شہید اور 241 زخمی ہو گئے ہیں۔ مغربی کنارے میں بھی اسرائیلی فوج کی وحشیانہ کارروائیاں جاری، فائرنگ کر کے 4 نوجوانوں کو قتل کیا اور پھر ان پر گاڑیاں چڑھا دی گئیں۔ 7 اکتوبر سے اب تک غزہ میں فلسطینی شہداء کی تعداد 23,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے قائم مقام مستقل مندوب عثمان شدون کا کہنا تھا کہ پاکستان اسرائیل کے خلاف جنوبی افریقہ کے عالمی عدالت انصاف میں جانے کا خیر مقدم کرتا ہے۔ کہا کہ عالمی عدالت انصاف کے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے متعلق قانونی موقف کا انتظار ہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف دائر مقدمے میں کہا گیا کہ غزہ میں اسرائیلی اقدامات نسل کشی ہیں۔ طاقت کے اندھا دھند استعمال کا مقصد فلسطینیوں کو زبردستی بے دخل کرنا ہے۔ کوہاٹ میں 10 سے زائد دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ، 3 پولیس اہلکاروں سمیت 4 افراد شہید۔ دہشت گردوں کی جانب سے لاچی ٹول پلازا کے قریب چیک پوسٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ شہید ہونے والوں میں ہیڈ کانسٹیبل امجد، ہیڈ کانسٹیبل جنید اور کانسٹیبل وقار کے علاوہ شہری نور محمد بھی شامل۔ لکی مربت میں نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر ایک ہی خاندان کے 11 افراد کو قتل کر دیا۔ افسوسناک واقعہ تختی خیل کے علاقے میں پیش آیا۔ واقعے کی اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی اور لاشوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کے مطابق قتل ہونے والوں میں 2 خواتین، 2 بچے اور 4 مرد شامل ہیں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ وبائی امراض کے تدارک کے لیے مضبوط اقدامات اور وقت کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں 2 روزہ گلوبل ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کی افتتاحی تقریب میں انوار الحق کاکڑ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے عالمی ہیلتھ سیکیورٹی سمٹ کا انعقاد پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ دنیا بھر میں صحت کے مسائل کا حل ضروری ہے۔ صحت سے متعلق اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹنا ہوگا۔ پاکستان کو موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث 30 ارب ڈالر سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں 13 نکاتی ایجنڈا پیش ہوگا۔ پاور ڈویژن سمیت دیگر وزارتوں کے مختلف امور ایجنڈے کا حصہ ہوں گے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملکی معاشی امن و امان کی صورتحال پر بھی غور کیا جائے گا۔ تحریک انصاف نے بلے کے انتخابی نشان کی درخواست سپریم کورٹ سے واپس لے لی۔ سماعت کے آغاز میں چیف جسٹس پاکستان نے بیرسٹر گوہر سے استفسار کیا، آپ کون ہیں؟ حامد خان صاحب کہاں ہیں؟
चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कल को कोई आकर ये दावा कर दे कि हमने दरख्वास्त वापस नहीं ली थी तो फिर क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर उसे खारिज कर दिया। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस पर समाअत के दौरान जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि कभी कोई तो कभी कोई लाडला बन जाता है। दरख्वास्त गुजार ने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाएं। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार दिया तो आपको चाहिए था कि दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते। आप अगर पार्टी से थे तो पार्टी निशान वापस लेने पर आपको एतराज करना चाहिए था, आपने नहीं किया। सियासी बातें ना करें, कानूनी नुक्ते पर आ जाएं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने साबिक वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी है। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज जस्टिस तारिक नजीर ने परवेज मुशर्रफ की सजाए मौत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ की सजा के खिलाफ अपील पर फैसला सुनाया और खुसूसी अदालत की सजा बरकरार रखी। चीफ जस्टिस कासिफ आजीजा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच केस की समाअत की। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हसनैन हैदर। मैं हूं ईशा लियाकत। हेडलाइंस अपने जाने बुलेटिन का आगाज एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया, जिसमें कहा गया है कि मेरे लिए काम जारी रखना मुमकिन नहीं है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने खत के मतन में कहा कि मेरे लिए एजाज की बात थी कि मैं लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहा। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस जेर समात है, जिसमें उन पर असासों से मुतालिक इल्जामात भी थे। अपडेट कर रहे हैं आपको। इस मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवा दिया, जिसमें कहा गया कि मेरे लिए काम जारी रखना मुमकिन नहीं है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने खत मतन में कहा कि मेरे लिए एजाज की बात थी कि मैं लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज रहा। आपको अहम तरीन खबर से आगाह करें कि सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तीफा दे दिया है। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भिजवाया, जिसमें कहा गया कि मेरे लिए काम जारी रखना मुमकिन नहीं। इसी पर मजीद बात करते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर नकवी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। इससे कबल जस्टिस मुजाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को शोकत का तफसीली जवाब भी जमा करवाया था। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने जवाब में खुद पर आयद इल्जामात की तस्दीक करते हुए कहा है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल जज के खिलाफ मालूमात दे सकती है, लेकिन काउंसिल जज के खिलाफ किसी की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। तफसीली जवाब में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल की जानिब से जारी अहकामात रूल्स की तौहीन के मुतरादिफ है। रूल्स के मुताबिक काउंसिल को मालूमात देने वाले का कार्रवाई में कोई किरदार नहीं होता। तो आज तफसीली जवाब जमा करवाने के बाद उन्होंने खुद को मुस्तफी कर दिया है और अपना इस्तीफा भी जो है सदर मुमलिकत को भिजवा दिया है। जी बहुत शुक्रिया सोनिया मलिक, आप अपडेट कर रही थी।
पेशावर हाई कोर्ट ने पीटीआई को बल्ले का निशान वापस कर दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान से मुतालिक केस का फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला बहाल कर दिया गया। पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन और बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत आलिया ने जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस सैयद अरशद अली ने पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत की। दौरान समाअत काजी जवाद एडवोकेट ने दलाइल देते हुए कहा कि मेरे मौकल ने पीटीआई के मरकजी दफ्तर से मालूमात लेना चाही जो उनको नहीं मिली। मीडिया से पता चला कि पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए। हमने दरख्वास्त की कि इंतखाबात कलअदम करार दिए जाएं। मेरे मौकल इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहते थे मगर उन्हें मौका नहीं दिया गया। जस्टिस एजाज अनवर ने सवाल किया कि आपने ये नहीं कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन दोबारा कराए जाएं? इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलअदम करार दिए तो आपको चाहिए था कि दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करते। आप अगर पार्टी से थे तो पार्टी निशान वापस लेने पर आपको इतराज करना चाहिए था, जो कि आपने नहीं किया। वकील काजी जवाद ने कहा कि हमें तो इंतखाबात में मौका नहीं दिया गया, इसलिए उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन गए। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि पेशावर में पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात हुए हैं जो इलेक्शन कमीशन ने कलअदम करार दिए। पेशावर हाई कोर्ट को पिटीशन सुनने का इख्तियार कैसे नहीं है? जवाद काजी एडवोकेट ने कहा कि दायर इख्तियार का सवाल इंतखाबी अहम है। अदालतों को मुख्तलिफ फैसलों में हाई कोर्ट के दायरा इख्तियार का तयन हुआ। पीटीआई तो लाहौर हाई कोर्ट भी गई, वहां उनकी दरख्वास्त खारिज हुई। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने लिखा है कि पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये केस ज़ेर समाअत है, पेशावर हाई कोर्ट को फैसला करने दें। जस्टिस अरशद अली ने सवाल किया कि एक मरतबा शेड्यूल जारी हो जाए फिर इंतखाबी निशान का फैसला सामने आ जाएगा। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं ब्यूरो चीफ पेशावर इश्तियाक नूर चमकनी से। जी इश्तियाक, बताइएगा, हाई कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला आया है सामने, मंजर-ए-आम पर पीटीआई का निशान बल्ला जो था उसे बहाल कर दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को और क्या जोश व जज्बा है कारकुनान का? राबता मुनक़ता हो गया है जी, बिल्कुल बहाल करने की कोशिश करेंगे। तब तक आपको बताएं कि हाई कोर्ट ने बिल्ले का निशान वापस कर दिया है। अदालत ने जवाब दिया है कि आपसे पहले वकील साहब ने भी दायरा इख्तियार पर 1 घंटा दलाइल दी। उन्होंने पॉइंट्स उठाए हैं कि उनके अलावा कोई है तो बताए। शिकायत कुनिंदा के वकील तारिक अफरीदी ने कहा कि आइन के आर्टिकल 192 के तहत इलेक्शन कमीशन विफाकी इदारा है, इसके मामलात इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सुने जा सकते हैं। पेशावर हाई कोर्ट का इस मामले पर दायरा इख्तियार नहीं बनता। पेशावर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने दरखास्त गुजारों इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वकला के दलाइल सुनने के बाद महफूज फैसला सुनाते हुए तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला जो था वो बहाल कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं इसी खबर से मुतालिक के जहांगीर तरीन पार्टी से फारिग कर दिए गए। आइन के मुताबिक अहदेदारों को मुंतखब नहीं किया गया था, जो लाजमी करार पाए अहदेदारों की अपडेटेड फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को देनी होती है। इंतखाबी निशान भी सियासी पार्टी को उसकी क्रेडिबिलिटी के मुताबिक दिया जाता है। पार्टी के आइन और वोटर के तहफ़्फ़ुज़ को मद्देनजर रखना जरूरी है। केस में फरीक नंबर 10 के दलाइल मुकम्मल हो गए, जिसके बाद फरीक नंबर 8 के वकील तारिक अफरीदी ने दलाइल का आगाज किया। इस्राएली फौज की गजा के रिहायशी इलाकों पर बमबारी से मजीद 126 फलस्तीनी शहीद और 241 जख्मी हो गए। मगरबी किनारे में भी इस्राएली फौज की वहशियाना कार्रवाइयां जारी हैं। मगरबी किनारे में भी इस्राएली फौज ने फायरिंग करके 4 नौजवानों को कत्ल किया और फिर जमीन पर पड़े नौजवानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। इसके अलावा इस्राएली ड्रोन हमले में मुतादिद फलस्तीनी जख्मी हो गए। दूसरी जानिब हमास के अस्करी विंग अल कसाम ब्रिगेड्स ने इस्राएली फौज पर वार करते हुए इस्राएली टैंक तबाह कर दिए और मजीद 9 इस्राएली फौजी हलाक कर दिए। 7 अक्टूबर से जमीनी ऑपरेशन में अब तक हलाक इस्राएली फौजियों की तादाद 180 से तजावुज कर गई है। इस्राएली फौज ने गजा में अब तक की सबसे बड़ी असलहा साज फैक्ट्री पकड़ने और हमास के 40 अरकान शहीद करने का भी दावा किया है। इसके अलावा इस्राएली फौज ने जुनूबी लबनान में हस्बुल्लाह के 3 अरकान शहीद कर दिए, जबकि इस्राएली वजीर खारजा ने लुबनान में हस्बुल्लाह के कमांडर बसाम अल तवील कर ली है। इधर मशरिकी वस्ता के दौरा करने वाले अमरीकी वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने इस्राएली वजीर आज़म से मुलाकात की है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक ब्लिंकन के नेतन्याहू पर गजा में शहरियों का जानी नुकसान कम करने, खिते में पायदार अमन और फलस्तीनी रियासत के क़याम की जरूरत पर जोर दिया गया। वाज़ेह रही कि 7 अक्टूबर से अब तक गजा में फलस्तीनी शोहदा की तादाद
23,000 से तजावुज कर चुकी है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि गजा कहत की तरफ बढ़ रहा है, पनागाहों में जगह नहीं है। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका की जानिब से फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू करने के इक़दाम का खैर मकदम कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब करते हुए पाकिस्तान के कायम मुकाम मुस्तकिल मंदूब उस्मान जदौन का कहना था कि पाकिस्तान इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका के आलमी अदालत इंसाफ में जाने का खैर मकदम करता है। उन्होंने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ की मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से मुताल्लिक कानूनी मौक़िफ़ का इंतजार है। वाज़ेह रही कि जनूबी अफ्रीका ने गजा में इस फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल के खिलाफ आलमी अदालत इंसाफ से रुजू कर लिया। आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से जारी बयान में बताया गया कि जनूबी अफ्रीका ने इसराइल के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ से इसराइल के खिलाफ मुकदमा चलाने की दरख्वास्त की है। जनूबी अफ्रीका की जानिब से कहा गया है कि गजा में इसराइली इक़दामात नस्ल कुशी हैं। इसराइली फौज गजा में फ़लस्तीनियों को जानबूझकर कत्ल कर रही है और गजा के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया गया। इसराइल की जानिब से ताकत के अंधाधुंध इस्तेमाल का मकसद फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेदखल करना है। इसराइल का यह अमल नस्ल कुशी कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। कोहाट में 10 से ज्यादा दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला करके 3 पुलिस एहलकारों समेत 4 अफराद को शहीद कर दिया। दहशतगर्दों की जानिब से कोहाट के इलाके लाची टूल प्लाजा के करीब चेक पोस्ट को निशाना बनाया गया। शहीद होने वालों में हेड कांस्टेबल अमजद, हेड कांस्टेबल जुनेद, कांस्टेबल वकार और शहरी नूर शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक एहलकारों की जानिब से जवाबी फायरिंग करने पर दहशतगर्द फरार हो गए। वाक़े के बाद पुलिस की भारी नफरी मौका पर पहुंच गई और इलाके को घेरे में लेकर हमला आवरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अफसोसनाक खबर है लकी मरवत से, जहां नामालूम अफराद ने घर में घुसकर एक ही खानदान के 11 अफराद को कत्ल कर दिया। अफसोसनाक वाकया तख्ती खैल के इलाके में पेश आया, जहां रात गए नामालूम अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी, जिसकी वजह से वाकये की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक कत्ल होने वालों में 2 भाई और उनकी बीवियों के अलावा बच्चे शामिल हैं। लाशों में एक लाश मेहमान रिश्तेदार की भी है और लाशें 1-2 दिन पुरानी मालूम होती हैं। इस हवाले से मुकामी ज़राए का कहना था कि किसी ने घर में घुसकर फायरिंग करके कत्ल करने के बाद घर को बाहर से ताला लगाया था। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर तहकीकात का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको अहम खबर से आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कोहिनूर न्यूज़ की निशानदही पर ऑरेंज लाइन ट्रेन में तलबा तालिबात को बंद की गई मुफ्त सफरी सहूलियात दोबारा से बहाल कर दी हैं। कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में तलबा तालिबात की मुफ्त सफरी सहूलियात को बंद करने की निशानदही की थी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने मुफ्त सफरी सहूलियात बहाल कर दी हैं। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने क्या कहा, आइए जानते हैं। बता रहे हैं आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कोहिनूर न्यूज़ की निशानदही पर ऑरेंज लाइन ट्रेन में तलबा तालिबात को बंद की गई मुफ्त सफरी सहूलियात दोबारा से बहाल कर दी हैं। कोहिनूर न्यूज़ के रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा ने ऑरेंज लाइन ट्रेन मेट्रो ट्रेन में तलबा तालिबात की मुफ्त सफरी सहूलियात को बंद करने की निशानदही की थी, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने मुफ्त सफरी सहूलियात बहाल कर दी हैं। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब ने क्या कहा, ये जानते हैं। सर जी, ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस सर्विस अब स्कूल खुल चुके हैं, स्टूडेंट्स को फ्री सफरी सहूलियात आपकी तरफ से बड़ा अच्छा इकदाम था, क्या आप वो दोबारा दी जाएंगी? नहीं है सर, आज वो बंद कर दी गई थी, बंद कर दी गई थी। मैं चेक करा लेता हूँ, मैंने क्योंकि खुद जी बिल्कुल अनाउंस किया था, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर नहीं हुआ तो आप समझे क्योंकि कल से शुरू हो। वेलकम
वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको बताएं कि कसूर थाना सदर के इलाका में लड़के को कुत्ते के काटने का मामला। डीपीओ कसूर तारिक अजीज संधू का नोटिस मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता रोज शहरी जावेद ने मुलजिम एहसन के खिलाफ अपने बेटे बिलाल पर पालतू कुत्ते से हमला करने की दरख्वास्त दी थी। थाना सदर कसूर के लड़के का मेडिकल करवाया, जिसकी रात गए तक MLC रिपोर्ट मौसूल न हुई। पुलिस ने बताया कि SOPs के मुताबिक MLC 8 घंटे बाद FIR का इंदराज किया जाता है। दरख्वास्त मौसूल हुए अभी 24 घंटे भी ना हुए थे कि इसी दौरान मुकामी रिपोर्टर ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए सनसनी फैलाने की कोशिश की। जिला भर में हर वाक़े के तयशुदा टाइम फ्रेम में FIR को यकीनी बनाया जा रहा है। मुरीद शाख में पुलिस मुकाबला, एक मुलजिम असलहा समेत गिरफ्तार। आखिरी तलात आने तक खनबड़ा थाना की हदूद में मोटरवे के मकाम पर गन्ने की फसल में मौजूद मुलजिम के 3 साथियों की फायरिंग जारी थी, जिसके बाद मजीद नफरी तलब कर ली गई। पुलिस का कहना था कि मुकाबला जारी है। गन्ने की फसल का मुहासरा करके मजीद एहलकारों को बुलाया जा रहा है। मुलजमान के पास क्लैशनकोफ G3 राइफल और हैंड ग्रेनेड मौजूद है। मुलजमान पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली से ज़म इजला करम जनूबी और शुमाली वज़ीरिस्तान खैबर साहब के फार्ज बनू कोहाट से गवर्नमेंट कॉलेजेस के लेक्चरर्स ने मुलाकात की है। ज़म इजला में प्रोजेक्ट के तहत भर्ती होने वाले गवर्नमेंट कॉलेजेस के लेक्चरर्स ने बहाली के लिए दरख्वास्त की। वफ्द ने बताया कि 42 के करीब लेक्चरर्स को मैनेजिंग यूनिट हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुअत्तल किया गया है। नौजवान लेक्चरर्स ज़म इजला के कॉलेजेस में अपने फ़राइज़ ईमानदारी और इंतहाई मेहनत से अंजाम दे रहे हैं। गवर्नर ने मुतल्लिका हुकाम से फौरी राबता और लेक्चरर्स को बहाल करने की हिदायत भी जारी कर दी है। उनका मजीद कहना था कि लेक्चरर्स को मुअत्तल नहीं किया जाएगा। शेखोपुरा में डाकू चोर बेलगाम हो गए। दिन दिहाड़े वारदातों से शहरियों की जिंदगी अजीरन होकर रह गई। जिनाह पाक चौक में 2 मोबाइल शॉप के मालिकान से दिन दिहाड़े 16.5 लाख लूट लिए गए। बढ़ती हुई वारदातों पर मकीनों को क्या कहना है, मजीद जानते हैं अपने रिपोर्टर महमूद बेग से, जो इस वक्त जाए वारदात पर मौजूद हैं। जी महमूद, बताइएगा। आज बिल्कुल हम इस वक्त मौजूद हैं थाना A डिवीजन के इलाका सरगोदा रोड पोश इलाका जनाब पार्क के करीब, जहां पर दिन दहाड़े 2 मसल्ला डाकुओं ने मोबाइल शॉप के ताजर को असला की नोक पर उस वक्त यरगमाल बनाकर 16.5 लाख रुपए नकदी लूट ली, जब वो बैंक में रकम जमा करवाने जा रहे थे। इस वक्त 15 की जानब से यहाँ पर पुलिस जो है कुर्बो जवार के CCTV कैमरों से फुटेज हासिल करके मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए इलाका में उन्होंने नाकाबंदी भी कर दी है। हमारे साथ यहाँ पर एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं, वो भी बताएंगे, और एक नौजवान मौजूद है जिसके साथ डकैती की वारदात हुई और अभी तक पुलिस की जानब से मुलजमान गिरफ्तार नहीं किए गए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मियाँ जी, शेखपुरा में बढ़ती हुई डकैती, चोरी, राहजनी की वारदातों के हवाले से क्या कहेंगे DPO? ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਇਆ 10-15 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਘਰ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਮਾੜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੰਗ ਰੋਡ ਤੇ, ਖਾਦ ਰੋਡ ਤੇ, ਤਾਰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਡੇਲੀ ਵਾਰਦਾਤ ਪਿੱਖੀ ਰੋਡ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਫੋਨ ਕਰੀ 6 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ। ਥਾਣੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੱਭੋ, ਅਸੀਂ ਲੱਭੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀਏ ਦੱਸੋ ਜੀ। जी अम्मा जी, आप बताएं, आप अभी बता रही हैं कि डकैतियां बहुत ज्यादा हो रही हैं, वो सामने जरा मेरे। हाँ जी, डकैतियां बहुत हो रही ने। आ उधर मसीत च जनाब कंपनी बाग जेड़ा है अपना नहर वाला महकमा है, उत्थे चो दिन दी हो गई है। मसीत दे अगों तो मोबाइल फोन आशा पार्क। जैसा कि अभी आपको ये बताया गया जी जनाब, आप बताएं, आपके साथ डकैती की वारदात हुई है। DPO शेखपुरा की जानब से बहुत ज्यादा तिफल तसल्लियां आवाम को दी जा रही हैं। क्या कहेंगे, जब आपके साथ वारदात हुई है अभी तक क्या पुलिस ने आपकी कोई बरामदगी करवाई है? कुछ भी नहीं हुआ। मैं 2-3 दफा गया DPO ऑफिस, जब मुलाकात ही नहीं होती। करते ये पर्चा मेरे पास है, ये फैक्ट्री एरिया में हुआ है। 1.5 माह हो गया, अभी तक कुछ भी नहीं पता चला इसका। आज बिल्कुल ये मुकदमा मदई है काशिफ साहब, उनका ये कहना है
पुलिस ने FIR दर्ज की, लेकिन अभी तक हमारे मुलजमान गिरफ्तार नहीं हो सके। ये जो दिन दहाड़े आज डकैती की वारदात हुई है, उसके बाद ताजर बरादरी में खौफ हरास पाया जा रहा है, लोग परेशान हाल हैं। उनका वजीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO शेखपुरा रेंज से एक ही मुतालबा है कि शेखपुरा में बढ़ती हुई डकैती, चोरी, राहजनी की शोरकोट बार के इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर गहमा गहमी जारी। पंजाब बार की तरफ से इलेक्शन कमीशन बोर्ड का भी ऐलान कर दिया गया, जिसमें चेयरमैन एडवोकेट मोहम्मद ताहिर अकबर साबर, एडवोकेट उस्मान जहूर सरोही, साबिका सदर बार कुमर नईम अफाज, साबिक सदर बार राशिद चौधरी शामिल। इलेक्शन कमीशन चेयरमैन ने ज़ाब्ता खलाक जारी करते हुए पंजाब बार के अहकामात के मुताबिक इलेक्शन साफ शफाफ तरीके के साथ कराने का ऐलान कर दिया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर शोरकोट बार में मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानते हैं। जी गुलाम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मौजूद हूँ शोरकोट बार में। शोरकोट बार के इलेक्शन की जो तैयारियां हैं वो अरूज में है, और इसी के साथ साथ उनका इलेक्शन कमीशन का जो है वो भी ऐलान कर दिया गया है। उनके चेयरमैन एडवोकेट मोहम्मद अकबर साबर साहब हैं, और उनके साथ मेम्बरान जो है वो चौधरी उस्मान जहूर एडवोकेट है, और उनके साथ मैं सर अभी मौजूद है बार में, मैं उनसे बात करेंगे। सर क्या बताइएगा, आपके इलेक्शन की तैयारियां अरूज में है, क्या क्राइटेरिया है, और आपके कितने मेम्बरान बार में जो हिस्सा ले रहे हैं, और उनके लिए आपने जो पब्लिसिटी का स्पेशली तौर पर किया जाता है बैनर पोस्टर, उसके लिए क्या अहकाम जारी किए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब बार कौंसिल की तरफ से मुझे जो लेटर मसूल हुआ है उसमें बीइंग चेयरमैन मेरे साथ मेंबर साहब हैं उस्मान जहूर सरोही साहब, और साथ हैं ज़फ़रुल्लाह पेरवाना साहब। साथ उन्होंने एक्स्ट्रा 2 मेंबरान मुझे दिए हैं, साबिक सदूर साहबान, एक का नाम है जनाब वाला राशिद चौधरी साहब, और दूसरे नईम आफाक साहब। इन 5 दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ बहुत तावन किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तमाम कार्रवाई जो इलेक्शन के सिलसिले में थी वो मुकम्मल कर ली है, और अब एक ज़ाब्ता इखलाक भी तैनात कर दिया गया है, जिसमें नोटिस कर दिए गए हैं। पंजाब बार कौंसिल की तरफ से मुझे लेटर मौसूल हुआ है कि आपने हदायत जारी करनी है कि कोई मेंबर यूनियन को यानी कि कोई उम्मीदवार अपने पम्फलेट, बैनर या इश्तिहारात वगैरह हदूद बार में नहीं लगा सकता, और साथ ही वो अपने खाने के ज़रिए किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, खाने के मतलब खाने के ज़रिए पार्टी या कोई दीगर खाने वाने का अरेंज नहीं कर सकता। उन बारे में मैंने उनको बज़रिया नोटिस मतलब। पेशावर में गोदाम से भारी तादाद में गैर कानूनी असलहा गोला बारूद बरामद, मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। SP कैंट वकास रफीक की हिदायत पर कैंट समेत नवाही इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जराइम पेशा, समाज दुश्मन अनासिर और गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। DSP सजाद हुसैन की सरबराही में SHO थाना सरबंद फवाद खान ने खुफिया इतला पर गोदाम में मौजूद गैर कानूनी असलहा और एमुनेशन बरामद करके मुलजिम दिलबर खान वल्द फरहाद को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम नवाही इलाका बुधबर का रिहायशी था, जिसके गोदाम से भारी मिकदार में गैर कानूनी असलहा मौजूद था। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की N127 से इंतखाबी मुहिम के इंचार्ज जुल्फिकार अली बदर का कहना है कि पार्टी चेयरमैन की जीत के लिए अपने मंशूर के साथ हर दरवाजे भर जाएंगे और कामयाब होंगे। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बड़े पैमाने पर तौसी के साथ रकूम की अदायगी में दरपेश मुश्किलात को दूर करने के लिए 30 के करीब बैंकों को प्रोग्राम में शामिल करने का प्लान तैयार किया गया। कोहिनूर न्यूज़ से बात करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, ये जानते हैं। इंशाअल्लाह ताला N127 में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने एतमाद का इजहार किया और मुझे N127 में अपनी कैंपेन का इंचार्ज बनाया। इंशाअल्लाह डोर टू डोर जाएंगे, हर घर में जाएंगे। 5,26,000 वोटर है, सबको जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि बाहर निकले और बिलावल साहब को वोट डालें। बिल्कुल बेहतरी आएगी। पहले इसके अंदर सिर्फ एक बैंक था इन्वॉल्व था, अब 15 बैंक आए हैं, 15 मजीद आ रहे हैं। तो बेनजीर इनकम सपोर्ट का जो डिस्बर्समेंट है वो आप किसी भी बैंक, किसी भी ATM से कर सकेंगे। आपको इसके अंदर आइंदा चूंकि स्टूडेंट से आ जाने हैं, लेबर आ जानी है, किसान आ जाने हैं और सेहत के सहूलियात आ जानी है। इसके जो भी प्रोग्राम्स हैं 52 के करीब हैं, लेकिन इसमें 5-6 जो है फौरी आएंगे। फिर सोलर के 300 यूनिट है, वो भी यहीं से हम उनको जो है डिफाइन करेंगे कि कौन इस कैटेगरी में पूरा आता है या नहीं आता। तो लिहाजा ये बहुत ज़्यादा हम फैसिलिटेट करने जा रहे हैं इसको, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा होंगी।
दूध में मिलावट करने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का क्रैकडाउन जारी है। फूड सेफ्टी टीमों की बाबू साबू सखियां रावे टोल प्लाजा पर सख्त नाकाबंदी। 41,000 लीटर से ज्यादा दूध की चेकिंग की गई। दूध में पानी की मिलावट और फैट कम होने पर 1900 लीटर से ज्यादा दूध तल्फ कर दिया गया। मौका पर किए गए टेस्ट फेल होने पर कार्रवाई अमल में लाई गई। पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी के ज़रिए एहतमाम ट्रेनिंग का इनकाद। पंजाब सिटीज प्रोग्राम के तहत 16 MCs के ऑफिसर्स ने शिरकत की। शुरका को 3 साल रूलिंग इंटरगेटेड डेवलपमेंट एंड ईस्ट मैनेजमेंट प्लान्स के नफाज पर ट्रेनिंग दी गई। स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात आसिया गुल ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। आसिया गुल स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि लोकल गवर्नमेंट्स में एहसास की बेहतरीन मनसूबाबंदी के लिए ईस्ट मैनेजमेंट प्लान का नफाज खुशाइंद इकदाम है। इन प्लान से बेहतर मनसूबाबंदी के साथ वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल मुकम्मल हो सकेगा। उन्होंने मजीद कहा कि वर्ल्ड बैंक के ताउन से 16 म्यूनसिपल कमेटीज में प्लानिंग, रिसोर्स मैनेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी की मजबूत बनाया जाएगा। आवाम तक म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी के लिए महकमा बल्दियात ग्रास रूट लेवल पर इस्तेलाहात कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बलोचिस्तान से पार्टी के टिकट होल्डर डॉक्टर मोहम्मद अयूब बलोच ने पार्टी में टिकटों की तकसीम के हवाले से बेज़ाब्तियों का इंकशाफ किया। डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने लाहौर प्रेस क्लब में एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन बेज़ाब्तियों का इजहार किया है। अहमद रियाज बलोच इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब में डॉक्टर मोहम्मद अयूब के हमरा मौजूद हैं। जी अहमद, बताइएगा डॉक्टर अयूब का क्या मुतालबा है पार्टी की आदत से? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर प्रेस क्लब में, जहां पे डॉक्टर अयूब बलोच साहब ने अभी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने जांच शीट एक किस्म की दाखिल की है मुस्लिम लीग नून की जो बलोचिस्तान में क़यादत है उसके हवाले से। और उन्होंने कहा है कि जो वहाँ पे मरकज़ी क़यादत है उन्होंने एक दफ़ा जो है धांधली का मुजाहरा किया है, क्योंकि एक जो उन्हें टिकट इशू हो चुका था उसके बावजूद भी वो टिकट किसी और को नवाजा जा रहा है। डॉक्टर साहब से बात करते हैं, पूछते हैं उनके और उनका क्या कहना है। जी डॉक्टर साहब। जी सर, ये है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी का एक मेंबर हूँ, मैं कायद का एक जियाला हूँ और पार्टी का एक जिम्मेदार रुकन हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में वर्क कर रहा था, क्योंकि मैं सिंगल कैंडिडेट था। मुझे गुमान भी नहीं था कि मेरा टिकट छीन कर किसी वडेरे को दिया जाएगा। मुझे ये तो 100% यकीन है कि कायदीन इस तरह होने नहीं देंगे, ठीक है ना। अब ये है कि मैं जो है ना 28 तारीख को एक लिस्ट सूबाई क़यादत ने जारी की जो मरकज़ से जारी लिस्ट के ख़िलाफ़ था। उसमें जो है ना मेरा NA 258 का टिकट असलम बुलेदी को देने की कोशिश की जा रही है, जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ, क्योंकि असलम बुलेदी साहब ना पार्टी में शामिल हैं, ना टिकट के लिए अप्लाई किया, ना पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में शामिल हूँ। अगर इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है तो फिर ये अलग बात है, क्योंकि फिर तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि आखिरी दिन तक इंतखाबात से फिर तो एक दिन पहले भी किसी का नाम किया जाए। आपने एक सरदार अयाज सादिक के हवाले से भी बात की कि भी वो भी उस मरकजी कमेटी का हिस्सा हैं। जी, उनके हवाले से क्या एतराज़ात हैं आपको? जी, उनके हवाले से ये है कि वो जो है ना वो कानून का साथ दें। जो पार्लिमानी इजलास जो हुए हैं उनकी बुनियाद पर टिकट जारी हुआ है। देखिए, हम फख्र करते हैं कि PMLN में इंटरव्यू की बुनियाद पर, पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की बुनियाद पर टिकट जारी हुए हैं। अगर पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में एक शख्स का नाम है ही नहीं, जो पार्टी में शामिल हुआ ही नहीं, अभी तक वो पार्टी में शामिल नहीं हुआ, बल्कि इतलात ये हैं कि वो शायद PP के टिकट को अप्लाई करे। अभी भी इतलात हैं, क्योंकि उनका जो है ना उनका एक भांजा है, वो PP के टिकट होल्डर है ज़हूर बुलेदी साहब, तो वो भी शायद ज़हूर बुलेदी साहब के साथ मिलकर वहाँ पर PP को ही ज्वाइन करें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि जल्दबाजी में अब पार्टी को नुकसान न दें। हम जो असल नजरियाती लोग हैं, हम जो पार्टी के लिए दिन रात एक कर रहे हैं, हमारा टिकट छीनकर क्यों ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिनके बारे में आपको ये यकीन नहीं है कि अगले घंटे में वो किस पार्टी में नहीं ला सकते। जी, ये थे डॉक्टर मोहम्मद अयूब बलोच साहब, जिन्होंने बताया कि उन्हें जो एतराज़ सरदार नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच और उम्मीदवार PP 169 अहमद सलेमान बलोच की यूनियन काउंसिल 217 में आमद राजू की कैंपेन को घर घर तक पहुंचाने के लिए इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान उम्मीदवार NA 128 लियाकत बलोच और उम्मीदवार PP 169
अहमद सुलेमान बलोच की यूनियन काउंसिल 217 में आमद हुई। तराजू की कैंपेन को घर घर तक पहुंचाने के लिए इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह कर दिया। आपको अपडेट करते चलें कि नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान उम्मीदवार N128 लियाकत बलोच और उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच की यूनियन काउंसिल 217 में आमद तराजू की कैंपेन को घर घर तक पहुंचाने के लिए इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया गया। मजीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर आसिम बदर से, जो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। जी आसिम, क्या तफसीलात है आपके पास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान व उम्मीदवार N128 लियाकत बलोच, उम्मीदवार PP 169 अहमद सुलेमान बलोच की यूनियन काउंसिल 217 में आमद तराजू की कैंपेन को घर घर तक पहुंचाने के लिए इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह भी किया। लियाकत बलोच और अहमद सुलेमान बलोच का शाह कमाल रोड पर मुमताज अहमद की जानिब से इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इन्होंने इस दौरान मुख्तलिफ दफ्तरों के और इलाका के मोअज़्ज़िज़ीन से मुलाकातें भी की। रवा रोड पर असद गफूर की जानिब से रवा रोड पर लियाकत बलोच अहमद सुलेमान बलोच ने इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। मुकामी रहनुमा हाफिज अहमद उमैर यासीन कम्बो आसिफ भट्टी ने इनका इस्तकबाल किया। यूथ रहनुमा काशिफ कामरान, आसिम राजपूत, फरक इस्लाम चौधरी, सिकंदर जानबाज, नवीद जज की शिरकत। अदालतों में लाडलों को मन चाहे फैसले मिलते हैं। सोने की चाबी से इंसाफ का दरवाजा खुल जाता है, जबकि कमजोर गरीब के लिए सब दरवाजे बंद हैं। मुल्क में आइन व कानून की बालादस्ती एक ख्वाब बनकर रह गया है। लियाकत बलोच का मजीद कहना था कि जमात इस्लामी को मौका मिला तो इंसाफ व इख्तिसाब का निज़ाम बिला तकलीफ काम करेगा। जिन पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं, वो मुल्क में जमहूरी इस्तेकाम नहीं चाहते। हल्का में मद्दे मुकाबल सियासी भगोड़े मुकाबला से भागते नजर आ रहे हैं। मुस्लिम लीग और इस्तेकाम को गश्त जोड़ता पछाड़ दूंगा, लियाकत बलोच। जी बहुत शुक्रिया आसिम बदर, आप अपडेट कर रहे थे। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद ने मियां अस्पताल का अचानक दौरा किया। इब्राहिम हसन मुराद ने तहखाने में मौजूद बच्चों की इमरजेंसी और दीगर वार्ड्स को चेक करने के बाद डॉक्टरों की लैब शोबा रेडियोलॉजी में होने वाले तामीराती काम का भी जायजा लिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद को एक्सीएन और एसटीओ ने ब्रीफिंग दी कि इंपोर्टेड लिफ्टों की डिलीवरी में ताखीर की वजह से काम लेट हो रहा है। 7वीं मंजिल पर डॉक्टरों के लिए 13 रिहायशी फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ताखीर का सामना है। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा व सेक्रेटरी जनरल ख्वाजा इमरान नज़ीर का PP 150 और UC 128 का सरप्राइज दौरा। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सीनियर लीगी रहनुमा मेहर उमैर फारूक के हमरा मोटरसाइकिल पर UC 128 का दौरा किया और कारकुनान से मुलाकात की। मुलाकात में इलेक्शन मुहिम के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। उम्मीदवार PP 150 ख्वाजा इमरान नज़ीर ने सियासी और समाजी शख्सियत के साथ साथ PP कोऑर्डिनेटर से भी मुलाकात की। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हुसूसी हिदायत पर पाकिस्तान में पहली दफा माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक रिक्शे को लाइसेंस जारी कर दिया गया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी की हुसूसी काविशों से पंजाब में माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शों को मुतारिफ करवाया गया। चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी ने तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। महकमे ट्रांसपोर्ट की काविशों से पाकिस्तान में पहली दफा इलेक्ट्रिक रिक्शों को लाइसेंस जारी कर दिया गया। महकमे ट्रांसपोर्ट का इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए बड़ा इक़दाम है। चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहसिन नकवी ने इलेक्ट्रिक बाइक्स, रिक्शे और इलेक्ट्रिक कारों का मुआयना भी किया। वजीर ट्रांसपोर्ट इब्राहिम हसन मुराद, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब अहमद जावेद काजी, एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग नादिया शफीक, एडिशनल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एडमन हुसैन बहादुर अली शाह, सेक्रेटरी प्रोविंशियल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी फैसल सुल्तान, सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राना मोहसन, CEO पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी फाइक अहमद, DIG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फरहान बेग और दीगर भी हमरा थे। CM पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, तलबा व तलबात को बैंक ऑफ पंजाब के तावन से 10,000 इलेक्ट्रिक बाइक्स देने जा रहे हैं। हम माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए इको फ्रेंडली पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुतारफ करवा रहे हैं। बहुत जल्द पंजाब में इलेक्ट्रिक बसें भी चलती नजर आएंगी, जिससे न सिर्फ मुसाफिरों को बेहतरीन सफरी सहूलियत मैसर आएंगी बल्कि सस्ती सवारी भी साबित होगी। इलेक्ट्रिक रिक्शों के लिए पहला लाइसेंस जारी कर दिया है। जो भी कंपनी मेयार पर पूरा उतरेगी उसको लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा।
DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का पुलिस अफसरान से क्राइम कंट्रोल के बारे में अहम इजलास हुआ। SSP ऑपरेशन, SSP डॉल्फिन और डिवीजनल SPs भी मौके पर मौजूद थे। तमाम सर्कल इंचार्जेस की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत यकीनी बनाई गई। इजलास में सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। आपको अपडेट करते चलें कि DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का पुलिस अफसरान से क्राइम कंट्रोल बारे अहम इजलास। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर। जी वसीम, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये DIG ऑपरेशन सैयद अली नासिर रिजवी का पुलिस अहम इजलास हुआ है। इसमें SP और तमाम डिवीजन के वो भी शिरकत कर रहे थे। इसके अलावा SSP लाहौर ने भी जो है वो शिरकत की है। SP डॉल्फिन भी मौजूद थे, जबकि तमाम सर्कल इंचार्ज की भी वीडियो लिंक के जरिए शिरकत हुई है। इजलास में अगर देखा जाए तो सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का जायजा भी लिया गया है। DIG ऑपरेशन का कहना था कि डाला कल्चर असला की नुमाइश करने वाले अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखें। इसी पर थानों में अगर देखा गया तो थानों में करप्शन किसी भी सूरत माफ नहीं की जाएगी। DIG ऑपरेशन का कहना था अपने इलाकों में खिदमत मराकज और थानों के विजिट करें। जबकि मैं बताता चलूं कि DIG ऑपरेशन का ये भी कहना था कि अपग्रेड किए गए 6 थानों में तमाम सहूलियात की दस्तयाबी यकीनी बनाएं। और इसी तरह से DIG ऑपरेशन की SPs को इश्तिहारी व आदि मुजरमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ रोजाना की बुनियाद पर मॉनिटर करने की हदायत भी जारी की गई है। DIG ऑपरेशन का कहना था कि 15 की कॉल पर बनाया जाए। SHO खुद जाए वकुआ पर पहुंचेंगे, जबकि कानून शिकन व समाज दुश्मन अनासर को कानून की गिरफ्त में लाकर जेल भिजवाएंगे। इसी तरह से नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से कहा गया कि नेशनल एक्शन प्लान के तहत सर्च एंड कुबिंग ऑपरेशन जारी रखेंगे, जबकि कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम में पेडेंसी ना आए। FIR का बरवक्त इंदराज जो है वो सबसे जरूरी है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आप अपडेट कर रहे थे। गुलशन रावे पुलिस की कामयाब कार्रवाई। अंदरूनो बैरून मुल्क पतंगे और डोर फरोख्त करने वाला रिकॉर्ड याफ्ता मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। पतंग और डोर फरोश मुलजिम का ऑनलाइन पतंगे और डोर अंदरूने बैरून मुल्क फरोख्त करने का इंकशाफ। SP अहमद जुनैर शीमा के मुताबिक मुलजिम के कब्जा से 750 पतंगे बरामद। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी है। SP इकबाल टाउन अहमद जुनैर शीमा ने कामयाब कार्रवाई पर SHO दिलावर भुट्टा पुलिस टीम को शाबाश दी। CTO लाहौर अमारा अथर ट्रैफिक दफातर की हालत इज़ार को बेहतर बनाने के लिए पुरअज़्म। अमारा अथर ने शहर के मुख्तलिफ ट्रैफिक दफातर के दौरे किए। CTO लाहौर ने रेलवे स्टेशन, सेक्टर ऑफिस, ग्रीन टाउन, टाउनशिप, इचरा, शादमान के दौरे किए। अमारा अथर ने CTO ऑफिस के मुख्तलिफ ब्रांचेस का भी विजिट किया। ट्रैफिक दफातर के रेवेन्यूएशन वर्क के लिए डिविजनल SPs और एडमिन अफसरान से भी मुलाकातें की हैं। अमारा अथर की तरफ से तमाम सेक्टर्स के लिए फंड्स जारी किए गए। तमाम ट्रैफिक सेक्टर्स को जदीद सहूलियात से आरास्ता किया जाएगा। स्पेशल पुलिस स्टेशंस के तर्ज पर अवामी सहूलियात फराहम की जाएंगी। CTO लाहौर अमारा अथर ने पुरानी इमारतों में कायम सेक्टर्स को फौरी तब्दील करने का भी हुक्म जारी किया। बेहतरीन वर्किंग और कारकर्दगी के लिए साजगार माहौल की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ शिकंजा सख्त हो गया। बल्दिया उस्मा लाहौर का वाहगा जोन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर की हिदायत पर ZOP अरम अल्ताफ ने GT रोड और बरकी रोड के इलाकों में ऑपरेशन किया, जिसमें मुतादिद तमीरात मस्मार कर दी गई हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको, गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ शिकंजा मजीद सख्त हो चुका। बल्दिया उस्मा लाहौर का वाहगा जोन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर की हिदायत पर ZOP इरम अल्ताफ ने GT रोड और बरकी रोड के इलाकों में ऑपरेशन किया, जिसमें मुतादिद तामीरात मस्मार कर दी गई। आपको अपडेट करते चलें कि गैर कानूनी इमारतों के खिलाफ शिकंजा सख्त। बल्दिया उस्मा लाहौर का वाक़ा जोन में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ क्रैकडाउन। एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर की हिदायत पर ZOP इरम अल्ताफ ने GT रोड और बरकी रोड के इलाकों में ऑपरेशन किया, जिसमें मुतादिद तामीरात मिसमार कर दी गई। आपको अपडेट करते चलें कि एडमिनिस्ट्रेटर MCL राफे हैदर की हिदायत पर ऑपरेशन किया गया। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान से बरतानवी पॉलिटिकल काउंसलर मिस जुई वेयर की मुलाकात हुई है। मुलाकात में
عالمی اور ملکی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال اور پارٹی منشور کے حوالے سے آگاہی بھی دی گئی۔ عبدالعلیم خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور برطانیہ کے مابین مختلف شعبوں میں تعلقات کا فروغ خوش آئند ہے۔ برطانوی پولیٹیکل کاؤنسلر زوئی ویئر کا کہنا تھا کہ تعلیم، صحت اور مختلف شعبوں میں پاک برطانیہ باہمی اشتراک کامیابی سے جاری ہے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کی زیر صدارت واسا ہیڈ آفس میں اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں تمام ڈائریکٹرز آپریشن اور ریونیو ونگ کے افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں ڈیزلٹنگ آپریشن اور ریونیو کلیکشن کا جائزہ لیا گیا۔ غفران احمد نے کہا کہ مونسون سے پہلے تمام ڈرینز ڈیزلٹنگ شیڈول کے مطابق مکمل کی جائیں گی۔ تمام ٹاؤنز میں ڈیفالٹر صارفین کے خلاف ایکشن تیز کیا جائے گا۔ ایم ڈی واسا کو 5 سے 8 جنوری تک نادہندگان سے ریونیو کلیکشن رپورٹ پیش کی گئی۔ گنج بخش ٹاؤن سے 1.02 ملین، گلبرگ ٹاؤن سے 0.34 ملین، علامہ اقبال ٹاؤن سے 1.32 ملین، عزیز بھٹی اینڈ واہکہ ٹاؤن 0.58 ملین، جبلی ٹاؤن میں 0.85 ملین، راوی ٹاؤن سے 0.46 ملین کلیکشن اکٹھے کیے گئے۔ خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔